Hi, all of you. So let's start with today's new chapter, that is solution. So this is the second chapter of NCERT of Chemistry 1. And this is the first lecture. So in this lecture, I am going to take types of solution and concentration of solution. Okay. So let's start with types of solution. Now solution, सबसे पहले, what is solution? So when solute is added to solvent, they form a homogeneous mixture, and that mixture is known as solution. Now, for example, if we take one glass of water, and in that glass of water, I am adding salt, NaCl. तो अभी ये NaCl जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, and it will get dissolved in such a way that we cannot find what is solute and what is solvent. So such mixture is known as homogeneous solution. So what is solution? When two or more substance gets added up in a solvent, it forms solution. Now solution consists of solute and solvent. So solute जो होता है, it is present in small quantity. बट ऑब्वियस है ना, हम लोग सॉल्ट जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कम लेते हैं. So it is present in small quantity. Solvent is present in large quantity. Then size of solute is very small, and therefore it gets completely soluble in water. Solute जो होता है, it is present in discontinuous phase. It is present in discontinuous phase. Discontinuous phase का मतलब क्या होगा कि जैसे सॉल्ट जो है NaCl, इट इज इन शुगर स्टेट. इनिशियली ये क्या है, सॉरी, इनिशियली इट इज इन सॉलिड स्टेट, एंड व्हेन इट गेट्स डिसॉल्व इन वाटर इट गेट्स कन्वर्ट टू लिक्विड. तो उसका फेस कैसा था, सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ. तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फेज. वेयर एज सॉल्वेंट इज इन कंटिन्यूअस फेज. वाटर पहले भी लिक्विड फेज में था, बाद में भी लिक्विड फेज में है. So उसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is in continuous phase. Okay, so now solutions are been classified into 9 types. Gaseous solution, liquid solution and solid solution. So here we can see gas and gas. So oxygen, nitrogen, inert gases एक दूसरे के अंदर कैसे होते हैं, completely mixed होते हैं, and therefore it is coming under solution. Liquid in gas, अभी ये जो gas है, it is present in larger quantity and this is present in small quantity. Chloroform getting mixed in nitrogen gas. So chloroform जो है वो small quantity में present रहेगा, and then nitrogen जो है वो larger quantity में present रहेगा. Solid in gas, camphor in nitrogen gas. Liquid solution, gas in liquid, oxygen getting dissolved in water. Liquid, ethanol in water. Solid, liquid, sugar in water, glucose in water. Solid solution में, gas in solid. Hydrogen getting adsorbed, getting mixed in palladium metal, so it is
the gas solid solution. Liquid solid, amalgam of mercury with sodium. सोडियम के अंदर अगर हम लोग थोड़ा मर्क्यूरी ऐड करते हैं, so it gets amalgam, that is an alloy. Solid, mixture of two or more metals forming alloy, जैसे copper getting dissolved in gold, it forms solid solution. So these are the types of solutions. Now अभी हम लोग next जो topic करेंगे, that is the concentration of solution. With this topic we have already done in 11th standard, but still हम लोग इसको वापस से स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है कि सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना. जैसे अभी मैंने शुगर ऐड किया था, सॉल्ट को ऐड किया था वाटर के अंदर, ठीक है. आई हैव एडेड सॉल्ट इन वाटर. तो अभी जैसे मैंने वाटर लिया, इफ आई हैव टेकन 1 liter water, and in 1 liter water I am adding 100 grams of NaCl. So what will be the concentration? 100 gram per liter. तो ये क्या बता रहा है अपने को? कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है सोल्यूशन का. बट ये एक मेथड हो गया, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए. सो हम लोग अभी एक एक करके स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट मेथड है मास परसेंट. मास परसेंट को W, मास बाय मास से डिनोट किया जाता है. नाउ दिस इज द फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, mass of component in solution upon total mass of solution into 100. Now suppose we have one mixture A and B. अभी मुझे A का मास परसेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मास परसेंट ऑफ A, that will be what? mass of A upon mass of A plus mass of B into 100. Similarly, mass percent of B will be how we'll calculate? Mass of B upon mass of A plus mass of B into 100. और you can 100 minus mass percent of A करो तो तुम्हें B मिल जाएगा. Okay, so let's do one numerical on this. So all of you read this question. What is given? Calculate the mass percent of benzene C6H6 and carbon tetrachloride CCl4. Yes, all of you calculate mass percent of benzene and carbon tetrachloride CCl4 if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. So there is a mixture of benzene and carbon tetrachloride. This is 22 grams and this is 122 grams. We have to calculate the mass percent of benzene. So formula क्या आएगा? Mass of benzene upon mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride into 100. अभी क्या है? एकदम इजी है, इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट करो. नाउ डिवाइड करो, 22 डिवाइड बाय 122 प्लस 22, तो ये कितना हो जाएगा? 22 अपॉन 144 इंटू 100. कितना होता है? इट इज कमिंग 15.28%. ठीक है.
अभी सपोज क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट स्टिल अगर अपने को कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ CCl4, तो फॉर्म तो क्या करेंगे, मास ऑफ CCl4, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 122 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100। सो ये कितना हो जाएगा, 122 अपॉन 144 इंटू 100। अभी इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, 84.72%। नाउ इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा ये आंसर करेक्ट है, तो ये ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है डिवीजन, हम लोग डायरेक्टली मास परसेंट निकाल सकते हैं CCl4 का, दैट इज 100 माइनस 15.28, सो इट विल गिव यू 84.27। बट अगर तुम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मेरा कैलकुलेशन उतना करेक्ट रहेगा, तो तुम ये मेथड करके देखो, दोनों का टोटल अगर 100 आता है तो तुम्हारा कैलकुलेशन करेक्ट है। बट अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है, तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा यू कैन डू इट बाय दिस मेथड। ठीक है, नाउ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन you can see here on screen, you can take screenshot for this is your homework question, it's an homework question. नेक्स्ट मेथड, वॉल्यूम परसेंट। जैसे मास परसेंट में मास था, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम रहेगा। नाउ वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट that is equal to volume of component upon total volume of solution into 100. So suppose you have a component A and B, अभी मुझे वॉल्यूम परसेंट ऑफ A निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B into 100. Okay, similarly volume percent of B is equal to volume of B upon volume of A plus volume of B, we can write it total volume of solution into 100. ओके, सो नाउ यही कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल करते हैं। रीड करो न्यूमेरिकल क्या दिया है। 12.8 centimeter cube of benzene is dissolved in 16.8 centimeter cube of xylene. Calculate percent by volume of benzene. Okay, percent by volume of benzene. Percent by volume, that is equal to फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बेंजीन प्लस वॉल्यूम ऑफ xylene into 100। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला, दिस इज 12.8 प्लस 16.8 into 100, सो दिस कितना आएगा, ये 43.24% बाय वॉल्यूम। सो ऑल ऑफ यू, मास परसेंट तो हम लोग ने ऑलरेडी किया था 11th स्टैंडर्ड में, वॉल्यूम परसेंट नहीं किया था। ठीक है, सो और इसके ऊपर ऐसे भी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सो लास्ट में मैंने होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं,
सो उसमें देख चेक कर लेना, वॉल्यूम परसेंट का क्वेश्चन रहेगा तो, अदरवाइज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं वॉल्यूम परसेंट पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे कैसा होता है, न्यूमरेटर में मास आता है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है। इट इज द मास ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सो मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अभी जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव 10% सोल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम्स ऑफ सल्यूट is dissolved in 100 ml of solution। सो ये हो गया मास, ये हो गया वॉल्यूम। सो ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है सोल्यूशन का, ये किस में दिया है, मास बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है। ओके, इस पे भी कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है तुम लोग के एनसीईआरटी में, सो विल जस्ट, इसका सिर्फ थियोरी है तो सिर्फ थियोरी करेंगे। नेक्स्ट मेथड है पार्ट पर मिलियन, दैट इज पीपीएम। तो हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पीपीएम स्टडी किया ही है, हार्डनेस ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन चैप्टर। वाटर का जो हार्डनेस होता है वो हम लोग किस में मेजर करते हैं, पार्ट पर मिलियन में मेजर करते हैं। सो इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग ने वहां पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। नाउ हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू दी थियरी, पार्ट पर मिलियन पीपीएम, और इसके कुछ एमसीक्यूज रहेंगे जो कि मैं तुम लोग को एमसीक्यू वाले वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए फॉर दिस वीडियो यू जस्ट हैव टू नो दी formulas for ppm। number of parts of component upon total number of parts of all components of solution into 10⁻⁶। सो अभी जैसे मुझे मास मालूम है तो मैं लिखूंगी मास ऑफ कंपोनेंट, और यू कैन राइट डाउन मास ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻⁶। This is the part per million, and this formula we have already used in hardness। Next is mole fraction। So this also we have already studied in 11th standard। क्या है, mole fraction of component is denoted by x। It is equal to number of moles of component divided by total moles of all components। Now suppose you have A and B component, तो अगर मैं एक्स ए लेती हूँ, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल मोल्स ऑफ बी। एक्स बी विल बी व्हाट, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। एक्स ए प्लस एक्स बी, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फ्रैक्शन है ना, तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर परसेंट जैसे 100 में से होता है, टोटल 100 में से होता है परसेंट, वैसे ही फ्रैक्शन जो होता है वो टोटल 1 में से होता है। अभी ये 1 कैसे आता है, आई कैन प्रूव यू, एक्स ए प्लस एक्स बी, so एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे 1 आता है, ये मेरा ऑलरेडी प्रूव हो गया है। ठीक है, सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethylene glycol in a solution containing 20% C2H6O2 by mass। फॉर्मूलाज दिया हुआ है, सो वी कैन कैलकुलेट द मोल्स। सबसे पहले मैं मोलार मासेस कैलकुलेट कर लेती हूँ।
ethylene glycol. Ethylene glycol is what? इथिलीन ग्लाइकॉल, मैं इसको ईजी शॉर्टकट में लिखती हूँ यहाँ पे, C2H6O2. So this is 24 plus 6 plus 32. तो ये कितना होता है? 62. Similarly, next molar mass, water. अभी यहाँ पे सल्यूट कुछ दिया नहीं है, so we'll consider it is a water. So it will be 2 plus 16, that is 18. ठीक है, अभी मोल्स कैलकुलेट करते हैं, बट मोल्स कैलकुलेट करने के पहले ये 20% बाय मास बोला है. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि तुम्हारा 20 grams of ethylene glycol is present in 100 grams of solution. ओके, सो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो 20 ग्राम्स है, टोटल सोल्यूशन 100 है, तो वाटर कितना रहेगा? 80 ग्राम्स. 20% को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 20/100. तो ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू मास परसेंट फॉर्मूला इट इज अ मास ऑफ ए, एंड 100 यानी क्या हो गया? मास ऑफ ए प्लस बी, दैट इज टोटल सोल्यूशन का मास. समझा? तो वैसे आया ये. तो ए यहाँ पे क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल, दैट इज 20. टोटल अगर 100 है तो बी कितना होगा? 80. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट मोल्स. मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, दैट इज 20/62. मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 18/80. सो ऑल ऑफ यू डू दिस डिवीजन. 20/62, that is 0.322 mole, and ये आएगा 4.44 mole. Now we can calculate mole fraction of ethylene glycol, that is moles of ethylene glycol upon mole of ethylene glycol plus mole of water. तो ये 0.322 डिवाइड बाय 0.322 प्लस 4.44. तो ये कितना होगा? 0.068. Okay, now mole fraction of water, it will be what? 1 minus 0.068, that is 0.932. ये शॉर्टकट मेथड है, अगर किसी को लॉन्ग कट करना है तो ये ऐसे भी कर सकते हैं. मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर will be moles of water upon moles of ethylene glycol plus moles of water. फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो एंड देन डिवाइड भी करो. Okay, all of you. So this all we have done in 11th standard. तो इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं. इट इज अभी ये सब तो तुम लोग का रिवीजन हो रहा है. Yes, all of you. So और हाँ, जो those who are new admissions, उनको उनके लिए ये न्यू है. बाकी जो पहले से ही है, हम लोग ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. सो इट इज जस्ट रिवीजन. तुम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए मेरा सोल्यूशन के लिए. तुम लोग को क्वेश्चन देख के ही खुद सॉल्व करना है और आंसर्स मेरे साथ चेक करने हैं. ओके, अभी नेक्स्ट मेथड है मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अभी मोलैरिटी जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन, एक मिनट.
ये तो इन लोगों ने लीटर में बोला, बट अगर ml में रहेगा तो क्या करने का, इनटू 1000। ओके ऑल ऑफ यू, इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर, और यू कैन सिंपली से मोलार, कैपिटल एम। नाउ यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम जो होता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। So when temperature changes, volume changes. So molarity भी क्या होगा, चेंज होगा. So molarity is temperature dependent method. Now अभी तक हम लोग ने जो जो पढ़ा, मास परसेंट, इसके अंदर सिर्फ मास है, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है. मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, मास डज नॉट चेंज विथ सोल्यूशन. तो ये क्या होगा, तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है. ओके नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा वॉल्यूम परसेंट, उसके अंदर वॉल्यूम है तो इसका मतलब दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम, तो दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है. पीपीएम में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मास आ रहा है, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. अगर वॉल्यूम आता है तो उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा. देन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी सिर्फ मास आता है, तो इट विल बी अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड. और मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड. तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं तुम लोग को. सो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी. Calculate molarity of a solution containing 5 grams of NaOH in 450 ml of solution. So सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ मोलैरिटी का. मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये ml में है तो इसीलिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ यहाँ पे सल्यूट क्या है, NaOH है ना, तो मोल्स क्या आएगा सल्यूट का, दैट इज 5 given mass and molar mass is 40. ओके मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ कैलकुलेट, सारा कैलकुलेशन साथ में करूंगी. 5/40 इंटू 450 ml है तो मैं यहाँ पे 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया. सो नाउ ऑल ऑफ यू, इसका कैलकुलेशन काफी इजी है, फटाफट कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ मुझे कितना आएगा. So it is coming 0.728 molar. Okay, or you can write 0.278 mole per liter. Okay, all of you. चलो next method करते हैं, that is molality. Now what is molality? It is denoted by small m. फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बट अभी सपोज यहाँ पे मास केजी में नहीं है सॉल्वेंट का, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. और अगर ये ग्राम्स में है तो क्या होगा, मेरा न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अभी इधर भी यू कैन सी ओनली मास इज कमिंग, सो दिस मेथड इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. इसका यूनिट क्या आता है ऑल ऑफ यू, मोल पर केजी, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मोलाल, स्मॉल m. लेट्स डू न्यूमेरिकल.
Calculate molality of 0.5 ethanoic acid in 75 grams of benzene. तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ. फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट. तो मोल्स ऑफ सल्यूट पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए पहले मुझे मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. CH3 दैट इज 12 इंटू 2, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन. तो ये कितना है? 24 प्लस 4 प्लस 32. कितना आएगा इसका आंसर? सिक्सटी. मोल्स विल बी 2.5 अपॉन 60. मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ यहाँ पे. 2.5 अपॉन 60 इंटू मास कितना है? 75 है. ग्राम्स में है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा. सो अभी इसका कैलकुलेशन करो सब लोग फटाफट और मुझे आंसर बताओ कितना आता है. कितना आ रहा है? 0.556 मोल पर केजी. और यू कैन ऑल्सो राइट इट 0.556 मोलाल, small m. Okay. Next question. So this is miscellaneous question, all of you. Just read this properly. Aqueous solution of NaOH is marked 10% weight by weight, यानी mass percent दिया हुआ है. The density of solution is 1.070 gram per centimeter cube. Calculate molarity, mole fraction of NaOH and water. ठीक है. So सबसे पहले 10%. So 10% is 10 upon 100. So 10 grams of NaOH in 100 grams of solution. So moles निकाल सकती हूँ मैं NaOH का. Moles of NaOH will be 10 upon 40. Solution is 100 और NaOH is 10. So water का mass कितना रहेगा? Mass of water will be 100 minus 10, that is 90. तो मुझे मोल्स आ जाएगा वाटर का. 90 अपॉन 18 कितना होता है? 5. तो ऑल ऑफ यू फर्स्ट मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन सबसे इजी लगता है. सो 0.25 अपॉन 5 प्लस 0.25. तो ये कितना आएगा? 0.25 डिवाइड बाय 5.25. So this will come 0.0476. Similarly, mole fraction of water. मैं 1 minus 0.0476 करूंगी. So this will come 0.9524. Okay. Now next.
I will be solving is molality. Molality का फॉर्मूला है number of moles of solute upon mass of solvent. ग्राम्स में है ना, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So moles of solute is 0.25, mass of solvent is 90 grams. So multiply by 1000. So all of you do this calculation. So this is coming as 2.77 mole per kg. ठीक है. अब मुझे नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी. फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ पे अपने को कहीं पे भी वॉल्यूम दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है. दे हैव गिवन अस डेंसिटी. So by using density, we'll first calculate the volume. So density of solution is what? Mass of solution upon volume of solution. So volume of solution will be mass of solution upon density. So mass कितना है solution का? 100 है. और density कितना है? इसको डिवाइड करो. 100 डिवाइड बाय 1070. सो सब लोग कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी कैलसी यूज नहीं करेगा. सो ये आएगा 93.46 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. अब मैं मोलैरिटी में सब्स्टिट्यूट करूंगी. 0.25 इज द मास ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम है 93.46 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स यू कैन टेक इट एज ml ऑल्सो. सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000. नाउ ये कैलकुलेशन करो सब लोग एंड मेरे आंसर के साथ में तुम लोग का आंसर क्रॉस चेक करो. नो वन विल यूज कैलकुलेटर फॉर डूइंग दिस कैलकुलेशन. सो दिस विल कम 2.675 mole per liter. Okay, all of you. So such type of question I have given you in homework also. So you will solve that question. All of you see this. These are the questions which I have given you in homework. इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, बट फिर भी तुम्हें वापस से उसको सॉल्व करना है. ओके. सो टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड मोर. ये अच्छे से जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं प्लस होमवर्क में दिए हैं, ये पूरे अच्छे से सॉल्व करके आना है. एंड इसके सिमिलर क्वेश्चंस मैं तुम लोग को क्लास में करने के लिए दूंगी. ओके. एंड दोज हु विल be failed in doing these questions, I'll give you punishment for that. Okay. and अगर कुछ नहीं भी आता है, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, रिलैक्स फील करो. अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी. अगर इसमें से सॉल्व एग्जाम्पल अगर कुछ समझ में नहीं आया है, होमवर्क में जेन्युइनली डाउट है, तो you can ask me. I will help you for it. Okay, all of you. Chalo then we'll stop here. We'll continue this chapter in next video. Till then, bye bye. Take care.